صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آیا، بہت دیر انتظار کرتے رہے، پھر مہمان کی تلاش میں آپ نکلے تو ایک شخص آپ کو ملا، بوڑھا شخص تھا، اس کو آپ لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام دسترخوان پہ بٹھایا، اور جب بات چیت اس سے ہوئی تو پتا چلا کہ وہ پروردگار عالم کو نہیں مانتا ہے، وہ دین ابراہیمی پہ قائم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے بہت دعوت دی کہ تو دین ابراہیمی میں داخل ہو جا، اس نے قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی سے جس دین پر ہوں اسی دین پہ قائم رہوں گا، کھانا کھلانا ہو تو کھلاؤ، نہیں کھلانا ہو تو میں جاتا ہوں، اس نے یہ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ جو دین ابراہیمی میں نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ کھانا کیوں کھائے۔ وہ شخص چلا گیا، اللہ اکبر، غیب سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، ابراہیم تو نے اسے ایک بار کھانا نہیں کھلایا اور ہم اس کو 70 سال کے قریب کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ اکبر، جاؤ اور اس کو لے کر کے آؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، اس کو لے کر کے آئے، اور جب لے کر کے آئے تو پورا واقعہ ابراہیم علیہ السلام نے سنایا۔ اس شخص نے کہا کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں کہ جو رب مجھ پہ اتنا مہربان ہے اس رب کی میں نافرمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں، ابراہیم مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اپنے دین میں داخل کر لو، آج سے میں پرانا دین چھوڑ رہا ہوں اور دین ابراہیمی میں داخل ہو رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا اور دین ابراہیمی میں داخل کر لیا۔ تو پتہ چلا مہمان کے لیے کھانا کھلانے کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مہمان آتا ہے تو وہ اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ جب انسان کو فکر رہا کرتی تھی مہمان کوئی آئے تو کھانا کھاؤں، آج یہ دور ہے میرے پیارو کہ یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤں۔ آج انسان کا حال یہ ہے کہ میرے گھر آنے والا مہمان چلا جائے تب اس کے بعد میں کھانا کھاؤں۔ پہلے کے مسلمان تھے جو سوچتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے ہمارے گھر پر تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہے یا نہیں ہے تو وہ دیکھ لے اس کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ مہمان کا آنا گھر میں خیر و برکت کی دلیل ہے، مہمان کا آنا گھر میں خیر و برکت کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب مہمان کسی کے گھر پہ آتا ہے تو وہ اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور مہمان کے صدقے وسیلے سے اچھی غذائیں کھانے کو مل جاتی ہیں، مہمان کے وسیلے سے اچھا کھانا کھانے کو مل جاتا ہے۔ اگر مہمان نہیں ہوتا ہے تو انسان جیسا چاہتا ہے ویسا کھانا بنا کے کھا لیتا ہے، اور جب مہمان آ جاتا ہے تو عزت بچانے کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر کوئی مہمان نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، آپ نے دیکھا کہ کوئی مہمان نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مہمان بنا کر کے بھیج دیا، وہ دونوں فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم کو اپنے ساتھ لے کر کے چلو۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے آتے ہیں، دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، کھانا لگایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، کئی وقت کے بھوکے تھے، آپ اپنی نظریں نیچے جھکا کر کے کھانا کھا رہے تھے، مہمان خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کی آڑ سے دیکھا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کی آڑ سے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ کھانا کھا رہے ہو اور مہمان دیکھو خالی بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ان دونوں مہمانوں نے کہا ہم کھانا کھانے سے پاک ہیں۔ کہا کیا تم فرشتے ہو؟ کہا ہاں ہم فرشتے ہیں۔ کہا کیا اللہ اکبر، آپ فرشتے ہو؟ کہا ہاں فرشتے ہیں، اور ہمیں پروردگار عالم نے آپ کو کھانا کھلانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ابراہیم تب تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک اس کے گھر پر کوئی مہمان نہیں پہنچ جائے گا۔ اے فرشتوں تم مہمان بن کر کے جاؤ اور میرے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ابراہیم کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پروردگار عالم اس کو منصب نبوت پر فائز فرمائے گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کی آڑ سے
ताज्जुब का इजहार किया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और मेरे शौहर के बाल सफेद पड़ चुके हैं। हजरत सारा ने जब ये ताज्जुब का इजहार किया तो फरिश्तों ने कहा, ऐ बीबी, आप इस बात पर ताज्जुब कर रही हैं कि आप दोनों बूढ़े हो चुके हो इसलिए आपके यहाँ पर बेटा पैदा होगा, इस बात पर ताज्जुब कर रही हो? वो रब तो कादिर मुतलक है, उसने इंसान को तब पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। इसलिए हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, हमको अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। राजी ब रजा रहने वालों के लिए परवरदिगार आलम बेहतरीन बदला अता फरमाता है, बेहतरीन इनाम अता फरमाता है। आज शादी के 2-3 साल हो जाएं और अगर भाई इंसान के यहाँ पर बच्चा ना हो तो वो बीबी को ताना मारना शुरू कर देते हैं, वो बीबियों को ताना देना शुरू कर देते हैं कि कैसी आई है, इसकी वजह से घर में कोई औलाद नहीं है, इसकी वजह से घर में कोई खुशखबरी की सुनाए, कोई खुशखबरी भी सुनने को नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर, 2-3 साल के बाद भी औरतों को ताना दिया जाना शुरू हो जाता है। याद रखो, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, यहाँ बोले मन यशाओ इनासों व यहाँ बोले मन यशाओ ज़कूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमा, बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, या अल्लाह उनको दोनों अता फरमाता है, बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसलिए हमने उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए। और उस रब ने पैदा किया गया, तमाम रसूला ने निजाम को पैदा किया गया, तमाम दुनिया को पैदा किया गया है। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम की आदत करीमाना थी कि हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कोई मेहमान नहीं आया, बहुत देर इंतजार करते रहे। फिर मेहमान की तलाश में आप निकले तो एक शख्स आपको मिला, बूढ़ा शख्स था, उसको आप लेकर के आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दस्तरखान पे बिठाया और जब बातचीत उससे हुई तो पता चला कि वो परवरदिगार आलम को नहीं मानता है, वो दीन इब्राहीमी पे कायम नहीं है। इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बहुत दावत दी कि तू दीन इब्राहीमी में दाखिल हो जा। उसने कबूल नहीं किया। उसने कहा कि मैं पहले ही से जिस दीन पर हूँ उसी दीन पे कायम रहूंगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं खिलाना हो तो मैं जाता हूँ। उसने ये कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से उठ करके चला जाता है। अल्लाह अकबर। जब वो चला गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि जो दीन इब्राहीमी में नहीं है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे खाना क्यों खाए। वो शख्स चला गया। अल्लाह अकबर। गैब से निदा आती है, आवाज आती है, इब्राहीम तूने उसे एक बार खाना नहीं खिलाया और हम उसको 70 साल के करीब खाना खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जाओ और उसको लेकर के आओ, उसको खाना खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकले, उसको लेकर के आए और जब लेकर के आए तो पूरा वाकया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनाया। उस शख्स ने कहा कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ कि जो रब मुझ पे इतना मेहरबान है उस रब की मैं नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा हूँ। इब्राहीम मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने दीन में दाखिल कर लो। आज से मैं पुराना दीन छोड़ रहा हूँ और दीन इब्राहीमी में दाखिल हो रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया और दीन इब्राहीमी में दाखिल कर लिया। तो पता चला मेहमान के लिए खाना खिलाने के लिए कितनी बड़ी फजीलत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान आता है तो वो अपनी किस्मत का रिज्क साथ लेकर के आता है। पहले एक दौर था कि जब इंसान को फिक्र रहा करती थी मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। आज ये दौर है मेरे प्यारों कि ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आज इंसान का हाल ये है कि मेरे घर आने वाला मेहमान चला जाए तब उसके बाद में मैं खाना खाऊं। पहले के मुसलमान थे जो सोचते थे कि कोई मेहमान आ जाए हमारे घर पर ताकि मैं उसके साथ बैठ करके खाना खाऊं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अगर किसी इंसान को यह देखना है कि उसके घर में खैर बरकत है या नहीं है तो वो देख ले उसके घर में मेहमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेहमान का आना घर में खैर बरकत की दलील है, मेहमान का आना घर में खैर बरकत का सबूत है। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के साथ खाना खाते थे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान किसी के
घर पे आता है तो वो अपनी किस्मत का रिस्क साथ लेकर के आता है, और मेहमान के सदके वसीले से अच्छी ग़िज़ाएं खाने को मिल जाती हैं, मेहमान के वसीले से अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। अगर मेहमान नहीं होता है तो इंसान जैसा चाहता है वैसा खाना बना के खा लेता है, और जब मेहमान आ जाता है तो इज्जत बचाने के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर कोई मेहमान नहीं आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में निकले, आपने देखा कि कोई मेहमान नहीं मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को मेहमान बना करके भेज दिया। वो दोनों फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमको अपने साथ लेकर के चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर के आते हैं, दस्तरखान पे बिठाते हैं, खाना लगाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भूख लगी थी, कई वक्त के भूखे थे, आप अपनी नजरें नीचे झुका करके खाना खा रहे थे। मेहमान खामोशी के साथ बैठे हुए थे। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से देखा। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आप खाना खा रहे हो और मेहमान देखो खाली बैठे हुए हैं, मेहमान खाना नहीं खा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नजर उठा के देखा, फरमाया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उन दोनों मेहमानों ने कहा, हम खाना खाने से पाक हैं। कहा, क्या तुम फरिश्ते हो? कहा, हाँ हम फरिश्ते हैं। कहा, क्या अल्लाहु अकबर, आप फरिश्ते हो? कहा, हाँ फरिश्ते हैं, और हमें परवरदिगारे आलम ने आपको खाना खिलाने के लिए भेजा है, क्योंकि रब तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा इब्राहिम तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसके घर पर कोई मेहमान नहीं पहुंच जाएगा। ऐ फरिश्ते, तुम मेहमान बन करके जाओ और मेरे इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दो कि इब्राहिम के यहाँ पर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, और परवरदिगारे आलम उसको मनसब नबुव्वत पर फाइज फरमाएगा। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से ताज्जुब का इजहार किया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और मेरे शौहर के बाल सफेद पड़ चुके हैं। हजरत सारा ने जब ये ताज्जुब का इजहार किया तो फरिश्तों ने कहा, ऐ बीबी, आप इस बात पर ताज्जुब कर रही हैं कि आप दोनों बूढ़े हो चुके हो इसलिए आपके यहाँ पर बेटा पैदा होगा, इस बात पर ताज्जुब कर रही हो? वो रब तो कादिर मुतलक है, उसने इंसान को तब पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। इसलिए हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, हमको अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। राजी ब रजा रहने वालों के लिए परवरदिगार आलम बेहतरीन बदला अता फरमाता है, बेहतरीन इनाम अता फरमाता है। आज शादी के 2-3 साल हो जाएं और अगर भाई इंसान के यहाँ पर बच्चा ना हो तो वो बीबी को ताना मारना शुरू कर देते हैं, वो बीबियों को ताना देना शुरू कर देते हैं कि कैसी आई है, इसकी वजह से घर में कोई औलाद नहीं है, इसकी वजह से घर में कोई खुशखबरी की सुनाए, कोई खुशखबरी भी सुनने को नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर, 2-3 साल के बाद भी औरतों को ताना दिया जाना शुरू हो जाता है। याद रखो, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, यहाँ बोले मन यशाओ इनासों व यहाँ बोले मन यशाओ ज़कूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमा, बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, या अल्लाह उनको दोनों अता फरमाता है, बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसलिए हमने उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए। और उस रब ने तब इंसान को पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो रब कादिर मुतलक है, वो रब चाहे तो बुढ़ापे में औलाद अता फरमा दे, वो रब चाहे तो जवानी में औलाद अता फरमा दे। इसलिए हमको उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की बारगाह में झुको, मस्जिदों में आओ, रो रो करके उस रब की बारगाह में दुआएं करो। वो रब तबारक व तआला तुम्हारे घर में खुशियां भर देगा। तुम उस रब की बारगाह में झुको तो सही, लेकिन तुमने डॉक्टरों की जात पे भरोसा रखा, तुमने नर्सों के कहने पे भरोसा रखा, तुमने आज दुनियावी मशीनों के ऊपर भरोसा रखा। उस रब की बारगाह में सर को नहीं झुकाया जिस रब ने इन डॉक्टरों को पैदा किया, उस रब की बारगाह में नहीं झुके जिस रब ने इन नर्सों
नफ्सों को पैदा किया, उस रब की बारगाह में नहीं झुके जिस रब ने इंसान के अंदर ये दिमाग दिया कि वो ऐसी मशीनें ईजाद करे जिसके जरिए इंसान के पेट में क्या है वो बता दे। तमाम बीमारियां बताने वाली मशीन इंसान ने बनाई है, तो उस इंसान को जो दिमाग दिया है उस रब ने दिया है। उस रब की बारगाह में झुको जो अहकमुल हाकिमीन है, उस रब की बारगाह में झुको जो मालिक अलल इतलाक है, उस रब की बारगाह में झुको जो मुदब्बिर हकीकी है, उस रब की बारगाह में झुको जो अहकमुल हाकिमीन है। वो रब चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे, वो रब चाहे तो कतरे को दरिया बना दे। वो वही रब है जो दोषे हवा को, जो गुबार को दोषे हवा पर मुकर्रर फरमाता है। वो रब है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा। वो मेरा रब है जिसने गारे सौर में अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। वो मेरा परवरदिगार है जिसने आग के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा। वो मेरा परवरदिगार है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। उस रब की जात पर भरोसा रखो, झुक जाओ उस रब की बारगाह में, आ जाओ अपने रब की बारगाह में, रो रो करके दुआएं करो। मेरे परवरदिगार हमसे जो गुनाह हुए हैं, मेरे मौला हमसे जो खताएं हुई हैं, मौला हम अपने खताओं की गुनाहों की माफी चाहते हैं। मेरे परवरदिगार आलम मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरे मौला मेरी खताओं को माफ फरमा दे। वो रब अरहमुर राहिमीन है, मेरा रब गफूर रहीम है। मेरा रब तुम्हें बख्श देगा और मेरा रब तुमको नेक औलाद अता फरमा देगा। उस रब की बारगाह में झुको जो रब तमाम जहानों का परवरदिगार है। उस रब की बारगाह में झुको जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकोगे, मेरे रब की बारगाह में आकर के रो रो कर दुआएं मांगोगे, माफी मांगोगे अपने गुनाहों से, और अपना रब की बारगाह में झुक करके ये अर्ज करोगे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मेरे परवरदिगार हमको नेक औलाद अता फरमा दे, मेरा रब तुमको नेक औलाद अता फरमा दे। इसलिए अपने रब की बारगाह में झुको। मेहमान का आना बरकत की निशानी है। मेहमान जिस घर में आता है उस घर में अब खैर बरकत लेकर के आता है। मेहमान जिस घर में आता है वो खैर बरकत का सबब होता है। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जिसको ये देखना हो कि मेरे घर में बरकत है या नहीं है, वो अपने घर में देख ले कि मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है कि नहीं है। अगर मेहमानों का आना जाना है उसके यहाँ पर तो उसके घर में खैर बरकत है। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। मेरे बयान करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कल मैं तो ये पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।